Let's start with today's session. We are going to take questions today, previous year's questions today. Without wasting time, let's directly get into the questions. Read out the question. In which one of the following situations are trusses normally used in buildings? The other day we have already covered trusses. All of you are aware with trusses. Truss, Truss, truss. अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा? लार्ज स्पैन बिल्डिंग्स, राइट. जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें ट्रसेस का इस्तेमाल ज्यादा होता है. हाई राइज बिल्डिंग्स मीन्स द बिल्डिंग्स विच आर डेवलप्ड वर्टिकली, द वर्टिकल बिल्डिंग्स लाइक स्काई स्क्रैपर्स and multi-storied buildings and high-rise buildings. These are those buildings. Then large span buildings means the huge spaces. Underwater buildings, we all of us know that the buildings which are developed underwater or below sea level or below sea, in fact below sea or below water, like in rivers or somewhere. Submerged structures, these are also called as submerged, submerged, submerged structures. Building in deserts are the other peculiar type of the buildings wherein you need to take care of the water aspect, that how do you conserve water, and also about the climate you need to take care of. But here the question is all about the use of trusses. So this is primarily seen in large span trusses. About the architects, those people, those who have done architecture but then they have left their field and they have switched over to some other field, and they are doing pretty well in their new field. Like we got to know about such people. Like I also told you about Aishwarya Rai, she is also an architect. Remo Fernandez, Rockstar, he is an architect. So just like that, just find out those names who are doing well in their respective fields but are basically an architect, or those who have done graduation in architecture. So just like that, architect Dipali Deshpande, I am expecting such questions on general awareness this time. So I felt like revising this particular information for you, although we have already covered it earlier. So architect Dipali Deshpande, she is an Olympian right now, and she has won Arjun Award and presently the high performance coach for National Rifle Team of India. राइफल या शूटिंग जो कंपटीशन होता है उसके लिए ये अभी हाई परफॉर्मेंस कोच हैं करेंटली. This question was also asked in previous NATA exam. So I have already covered what are dome, walls, shell and arcade. Arcade is series of arches, all of us know. This particular structure is a vault. वॉल्ट के ये अलग अलग टाइप्स हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो. तो आपको अलग अलग टाइप्स इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो शेप दिया हुआ है उससे आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, राइट. सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्ट्स. आउट ऑफ दीज वॉल्ट्स द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस ग्रॉइंड वॉल्ट, वेर इन चार वॉल्ट्स जो हैं दे आर जॉइनिंग in 4 different directions. जैसे इस particular sketch में भी आप देखोगे तो these are 2 walls. Of course one is smaller and the other is bigger in diameter, but in this case 4 walls of the same size and diameter are joining and forming this kind of a structure which is called as groined vault. So vault में आपको basically this is बैरल वॉल्ट. इस तरह का जो बैरल शेप होता है उसको आप हाफ करके उसको रूफ के लिए यूज करोगे, तो दिस इज अ बैरल वॉल्ट. ऑल द 3 टाइप्स आर सिमिलर टू लाइक बैरल वॉल्ट्स, बट बिकॉज ऑफ इट्स शेप ये सेगमेंट है. दिस इज नॉट अ perfect semi circle or
semicircle. This is a segment of an arc, therefore this is called as segmental arch. और ये catenary है, catenary मतलब parabola के shape में है, but again this is a vault. Fine. I would also like to explain the difference between the shell and vaults. The other day I just made a list of all these different types of shapes for the roofs and told you in short about the shapes, but they to like avoid confusion between what is a vault and shell, because I told you that these two are the similar structures. Just to avoid that, today I would like to focus upon these two shapes. Like these are all shells, these are not vaults, right? Notice one thing, that in case of a vault, let's go to the earlier slide once again. In case of a vault, this would continue from front to back. The shape would continue as it is. In all the different shapes you see, here also the vault is cut from the sides to accommodate maybe openings or windows. But if you take a look at the roof overall, you'll find that the shape continues as it is from the front to the from one end to the other end, right? In all the examples you will notice. Whereas in case of the walls, you see that these are resemblance with the shells. Shells मतलब आप shell structure जैसे ही क्वेश्चन में आए या एग्जाम्पल्स में आए, तो शेल आप जो सी शेल्स हैं उससे कंपेयर करो. तो यहाँ पे आप कोई भी एक, these are like petals, you know, petals of lotus, और ये भी petals जैसे ही दिखाई दे रहा है. Can you just identify these two structures we have already covered? Come on, quickly. Anyone? These two structures? Opera House or Lotus Temple. Yes, this is Opera House, Sydney Opera House, and this is Lotus Temple, Delhi. So both the structures are based on the structural system that is called as vault. Shell. So sorry, it is shell, right? So here also this is a shell roof wherein you can't see the same either semicircle or maybe an arc or a parabolic form, whatever that you could see in the earlier slide, and that continues from the beginning to the end. But here you don't find anything like that. The shells are of different shapes, and here also the shell. Basically, to identify a shell roof, you can simply recall the shells of a sea, different shapes of the shells, and then probably it would be easier for you to identify. So these two are also types of shell, wherein you can see that this starts with a semicircle, but here at this end it flattens, right? The roof form flattens up. So that is how this could not be a vault, because if it was a vault, it would have been the same profile from the front to the rear side of it, or from the beginning to the end. But I hope you can understand. Yes or no? Answer quickly. So this is the difference between a shell and a vault. So here it is a shell, whereas once again let me take you back to the earlier slide. This is a vault. Okay, this is a vault. So vault could be always compared with maybe a pipe, hollow pipe. You cut it to half and just place it on ground. What you get is a vault. And shell is these kind of shells, which could be easily compared with the different shapes and sizes of the shells that are naturally occurring in the ocean life. Next question, radically different, belongs to the logo design. So here this time also you can expect in both the exams questions based on logo design, maybe odd one out or
identifying about the correct logo of a brand or a group or a company, something like that. तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. मोटोरोला brand for mobiles, rest 3 are food brands. So odd one out इसमें निकालना है आपको. इस क्वेश्चन में what is this actually? We have already covered this. क्या चीज है ये? हाँ, दिस इज फिबोनाची सीरीज. और मैंने ये इसलिए फिर से लिया कि एक तो ये रिवाइज हो जाएगा और उसके साथ साथ में आपको जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं ये भी यूं ही ऐसे बेकार में नहीं दिया हुआ है. इसको भी आपको देखना है कि इफ दिस इज फिबोनाची सीरीज देन व्हाट आर द अदर 3 ऑप्शंस, लाइक what is rule of thirds, what is diagonal method, and what is random sequence, right? Random sequence as it is quite clear by the name itself that randomly when you arrange things, maybe then it will be called as random sequence. We'll also take all these things in detail, but from exam point of view, let me explain rule of thirds, which is more important for you at this point of time. See, most of the photographers and painters, artists, they follow this rule of thirds, which says that any frame, any given size should be divided into 3 parts, horizontally as well as vertically. Horizontally आप देखो इसमें ये जो इसका टोटल हाइट है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ऐसे ही वर्टिकली आप देखोगे तो इसका जो टोटल लेंथ है फ्रेम का उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है by means of these vertical lines and the horizontal lines. So like that, how many such segments you get? 3 plus 3 plus 3, 9 segments are there, right? अब इसमें जब आप किसी भी पिक्चर फ्रेम को इस तरह से इक्वली डिवाइड करके चेक करोगे तो आप देखोगे कि जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उस पूरे फ्रेम का उसको they would place either on intersection points or at the center. जैसे ये intersection points है, ये horizontal line है, ये vertical line है. तो जो thirds, rule of thirds मतलब ये जो 2/3 वाला पोर्शन है उसको छोड़ के जो 1/3 वाला पोर्शन है ये फ्रेम 1/3 वाला हो गया. मतलब ये 2 पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2, ये यहाँ पे पूरा सीन दिखाई दे रहा है. और जो 1/3 वाला पोर्शन है यहाँ पे इन्होंने इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है उसको इस तरह से फोटोग्राफ किया है, उसको इस तरह से कैप्चर किया है कि फोटोग्राफ में बाकी सीन दिखाई दे रहा है और जो 1/3 वाला पोर्शन है वहां पे ये एनिमल फोटोग्राफ्ड है ना, कैप्चर्ड है. सो दिस इज हाउ द इम्पोर्टेंस टू द मेन एलिमेंट ऑफ द पिक्चर फ्रेम is gained just by placement of the element. तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ये जो 1/3 वाला पोर्शन है यहाँ पे इस ट्री को प्लेस किया हुआ है. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि ये जो इंटरसेक्शन है, जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का इंटरसेक्शन है, वहां पे भी हम इसको प्लेस करते हैं. जैसे यहाँ पे आप देखो, यू कैन वेरी अपरेंटली इट इज seen that these are the intersection points, point 1, point 2, where this figure is placed while photographing, while clicking this picture, right? And here sometimes, you know, to also catch the attention to and to give more importance to the focal point or the main element of the picture frame, it is located in the center of it. जितने जैसे 9 स्क्वायर्स हैं इसमें सेंटर में इसको लोकेट करते हैं. लेकिन जैसे यहाँ पे डॉग्स आई इज ऑक्यूपाइंग दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट? सो इसमें भी आप पूरे फेस को देख पा रहे हो लेकिन आपकी नजर जो है आंखों पे जा रही है, इसके एक्सप्रेशन पे जा रही है ना. सो दिस इज हाउ बीच में इसको प्लेस किया है. द होल फेस ऑफ दिस पेट हैज बीन प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर फ्रेम, लेकिन उसमें भी आंख को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है.
Can you identify the correct logo of Amul? I'll just leave this question up to you. Find it out. And कौन सा ऑप्शन है बताओ? ऑप्शन D, ma'am. ऑप्शन डी, द लास्ट वन, राइट? Yes, ma'am. हाँ, तो ऐसे आपको जो लोगोज हैं, इंपॉर्टेंट लोगोज हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान देना है. In which of the following countries are Zen gardens popular? Zen gardens are popular in Japan. चाइना के टी गार्डन्स फेमस होते हैं. पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान में ऐसे एज इन मुगल आर्किटेक्चर या इस्लामिक आर्किटेक्चर है, तो यहाँ पे चारबाग कॉन्सेप्ट पे गार्डन्स प्लेस्ड होते हैं, डिजाइंड होते हैं. सो यू हैव टी गार्डन्स फॉर चाइना, जेन गार्डन्स फॉर जापान, एंड पाकिस्तान या इंडिया में भी आपको मुगल आर्किटेक्चर के चारबाग चारबाग यानी 4 स्क्वायर, उस कॉन्सेप्ट पे गार्डन्स प्लेस्ड होते हैं. Which of the following textures describe the surface of a mirror? अब ये टेक्सचर और कलर और टेक्सचर पे ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे बेस्ड होते हैं. जैसे टेक्सचरल क्वालिटीज आपको समझना है. हाँ, यस, दिस इज शाइनी मिरर. हमको सबको पता है कि मिरर इज शाइनी. रिंकल्ड टेक्सचर, जैसे किसी एनिमल को दिखाया और पूछा है तो वो रिंकल्ड टेक्सचर होगा. कोर्स टेक्सचर मतलब रफ, लाइक मे बी सैंड. grainy texture also maybe like sand or some kind of crystalline texture or something like that. So texture से related जो questions हैं वो बहुत आसान होते हैं. आपको थोड़ा सा common sense use करके वो questions आप easily attempt कर सकते हो. ठीक है. Next जो है ये है which one of the following flooring is ideal for indoor badminton court? Can you tell me? Ma'am, wooden. यस. बैडमिंटन खेलते हो आप? Yes, ma'am. अच्छा, इसलिए आपको पता है. वेरी नाइस. हमको एक ना एक आउटडोर स्पोर्ट खेलना ही चाहिए, है ना. तो ग्रेनाइट जो है वो मोस्टली, जैसे मैंने कहा कि दिस इज द हार्डेस्ट स्टोन. इग्नियस रॉक होता है. इग्नियस रॉक से हम ग्रेनाइट निकालते हैं क्वेरिंग करके. ब्रिक्स हम सबको पता है, ब्रिक का फ्लोरिंग तो हो नहीं सकता है बैडमिंटन कोर्ट के लिए. मार्बल फ्लोरिंग घरों में होती है. मार्बल को क्लैडिंग के लिए भी यूज करते हैं, वॉल पे क्लैडिंग करते हैं. जैसे ताजमहल पूरा मार्बल से बना हुआ है ना. वुडन फ्लोरिंग बैडमिंटन कोर्ट में होती है, जिससे इम्पैक्ट कम आता है, क्योंकि हम उस पर जंप कर रहे होते हैं. ये एक स्पोर्ट एक्टिविटी है. तो वुडन फ्लोर्स जो है डांस फ्लोर्स के लिए यूज होते हैं. जैसे डांसिंग के लिए जो स्टेजेस बनते हैं उसके लिए वुडन फ्लोर्स यूज होते हैं. और जैसे बैडमिंटन का इंडोर कोर्ट हो गया या टेबल टेनिस का इंडोर कोर्ट हो गया, ऐसे जो इंडोर कोर्ट्स होते हैं वहां पे भी वुडन फ्लोर्स का इस्तेमाल होता है. टर्फ का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो लॉन टेनिस जैसे स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है. तो इस तरह से थोड़ा बहुत कुछ जनरल अवेयरनेस भी आपको रखना चाहिए. Which one of the following architects designed मध्य प्रदेश असेंबली बिल्डिंग? बताओ. अभी किया है हमने ये कवर. Ma'am, Charles Correa. ब्रिलियंट. चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया है मध्य प्रदेश का असेंबली बिल्डिंग. और वो कैसी दिखती है? उसमें डोम दिखाई देगा आपको मेनली, है ना. एंड इट इज बेस्ड ऑन वास्तुशिल्प शास्त्र. 9 स्क्वायर्स ऑफ वास्तुशिल्प शास्त्र, उस पे ये बेस्ड है. चार्ल्स कोरिया इंडियन आर्किटेक्ट है कि फॉरेन आर्किटेक्ट है? Indian. यस, ब्रिलियंट. What is the normal height of a doorway in residences? Answer. Answer fast.
एक नॉर्मल डोर का हाइट क्या होता है इंडियन रेजिडेंसेस में? 2.1 meters, which is the lintel level, lintel height. Normal lintel height is 2.1 meter. Okay, इसको याद रखो. लिंटल लेवल 2.1 मीटर होता है. सिल लेवल क्या होता है? डोर और विंडो आजू बाजू में जब आप रखोगे तो डोर का टॉप और विंडो का टॉप मैच होना चाहिए, लेकिन विंडो का जो बॉटम लेवल है वो सिल लेवल कहलाता है और वो होता है 0.8 मीटर या 0.9 मीटर. यूजुअली 0.9 मीटर एक स्टैंडर्ड हाइट पहले लिया जाता था, लेकिन आजकल वैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है. विंडो को फुल हाइट भी आप ले सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड जो है वो 0.9 मीटर्स का होता है सिल लेवल. और ये 2.1 मीटर इज द लिंटल लेवल, जहां पे एक बीम आती है डोर के ऊपर जिसको हम लिंटल लेवल कहते हैं. विंडो के ऊपर भी एक बीम आती है जिसको हम लिंटल कहते हैं. ठीक है, लिंटल लेवल पे. कौन सा है ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी. हाँ, अब ये तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन यदि कॉमन सेंस से भी आपको फाइंड आउट करना है तो आप देखो कि ए में यहाँ पे एक लाइन आनी चाहिए, है ना. तो यहाँ पे क्योंकि लाइन नहीं आ रही है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है. ए ऐसा तो नहीं हो सकता. और मतलब ये इसका मिरर इमेज है, लेकिन पहले जब आप ए लिखना शुरू करते हो तो पहले ये वाला स्ट्रोक आप लिखोगे ना. ए आप ऐसे और ऐसे नहीं चालू करते हो, आप ऐसे और ऐसे लिखते हो नॉर्मली. तो जब आप पहले ये वाला स्ट्रोक आपका पहले आ गया तो ये सेकेंड स्ट्रोक है जहां पे कि आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन का भी फील देना है. तो कॉमन सेंस से भी आप इसको आंसर कर सकते हो. नाटा में थोड़ा सा रिस्क इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना. बिल्कुल टोला मार के भी आपको करना नहीं है, क्योंकि जब सिमिलर मार्क्स वाले होंगे, सेम मार्क्स वाले होंगे, तो रैंकिंग जो है जिन्होंने कम रॉन्ग आंसर्स किए हैं उनकी रैंकिंग आगे बढ़ेगी. तो रॉन्ग आंसर्स से बचना है. नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बिल्कुल टोला मार के सब कुछ सॉल्व करना है ऐसे मत करो. थोड़ा थोड़ा जहां समझ में आ रहा है वहां पे आप कर सकते हो. राइट. अब यहाँ पे देखो, ये दिल्ली का है. ये दिल्ली का है. यहाँ पे सिर्फ एम्पायर्स पूछे जा रहे हैं आपको, तो कौन सा सही ऑप्शन है इसमें? This is going to be a bit tough question. हाँ, option? Are you sure about it? Yes, ma'am. Which one you said? C. Yes, ma'am. हाँ, लास्ट वाला तो मुगल है क्योंकि ये किला है ना, लाल किला है, तो ये मुगल है. फिर उसके बाद विजयनगर एम्पायर है, फिर चोला एम्पायर है, फिर ये मौर्यन एम्पायर का ये क्या है? कौन सी बिल्डिंग है ये? कौन सा स्ट्रक्चर है? हाँ, सांची स्तूपा. दिस बिलोंग्स टू मौर्यन एम्पायर, दैट इज फॉर श्योर, इजंट इट? तो यहाँ पे देखो मौर्यन एम्पायर में 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मौर्यन यानी सांची स्तूपा. अब सेकंड और थर्ड में यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो सकता है तो वो आपको एलिमिनेट करना है. विल ऑल्सो टेक अप दिस इन डिटेल होपफुली बिफोर संडे ओनली, बिकॉज टेम्पल्स का जो पोर्शन है काफी कुछ बच गया है अभी. तो लेट्स मूव अहेड. बे विंडो, इसमें डॉर्मर विंडो भी होता है. आप ये चारों जो विंडोज हैं इनके इमेजेस चेक कर लेना. इमेज सर्च में जाके व्हाट इज बे विंडो, ये तो रूफ पे जो विंडो आता है. सॉरी, ये दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली अबाउट द डॉर्मर विंडो एंड सी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर. डॉर्मर विंडो इज प्रोवाइडेड ऑन रूफ, बे विंडो इज प्रोवाइडेड ऑन वॉल, and clerestory window is provided between slabs, two roof levels. Between 2 roof levels, clerestory window is provided. So just check with the image search so that you can keep this in mind, the images of all the 4 types of windows. Okay,
बे विंडो ऑन वॉल, डॉर्मर विंडो ऑन रूफ, ये रूफ पे है, ये दोनों मैंने बता दिया। क्लेरस्टोरी विंडो दो स्लैब्स के बीच में, जैसे दो स्लैब्स अलग अलग लेवल पे आ रही हैं, उनके बीच में जो विंडो आएगा उसको क्लेरस्टोरी विंडो हम कहेंगे। हिप विंडो क्या है ये आप फाइंड आउट कर लो, और लेट्स मूव अहेड। To which cultural aesthetics and landscape do the elements such as tea house, dry landscape garden, treasure tower, pagoda, drum, bridge, trees, water and rock attributed? ये जो टी हाउस है, जापानीज टी हाउसेस, जापानीज टी गार्डन्स, जापानीज टी गार्डन्स आर फेमस क्योंकि जापान में जो टी सेरेमनी है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सो द आंसर इज ए। एम आई राइट? आपके पास आंसर्स भी होंगे। Yes, ma'am. Japanese. हाँ, तो these are famous as Japanese टी गार्डन, और टी गार्डन्स उनके जो है वो ड्राई लैंडस्केप से बने होते हैं। होपफुली आई विल बी कवरिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्डन्स, जो कि आपको इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे प्लानिंग का जो आपका आता है ना पेपर, JWBR पेपर 2 में, 2A आर्किटेक्चर के लिए है, 2B प्लानिंग के लिए आता है। तो प्लानिंग में जो गार्डन्स का और सिटी प्लानिंग उससे रिलेटेड काफी कुछ आएगा, तो आई बी कवरिंग दिस अप। Which event is celebrated on 22nd of March? आपके पास आंसर है वर्ल्ड वाटर डे। World Water Day. हाँ, आपको बाकी भी डेट्स आपको याद रखने हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे याद है क्या डेट? योगा डे याद है? एनवायरनमेंट डे जून में होता है, मोस्टली 4th of June इफ आई एम राइट। योगा डे भी आई थिंक दिस इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन जून। वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे, ये सारे डेट्स, मतलब देखो एक ये है कि जो भी MCQs में आ रहे हैं, जो ऑप्शन हम आपने सिलेक्ट कर लिया बस उसी से मतलब है, बाकी तीनों से मतलब नहीं है, ऐसा मत करो। बाकी तीनों के भी बाकी तीन मतलब इसी से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस MCQs जनरेट हो रहे हैं ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, क्या है ये, वर्ल्ड योगा डे क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, और वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे। ये गॉथिक आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, और आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन दिस टाइम ऑन फ्लाइंग बटरेसेस। ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे हवा में, ये जो पर्टिकुलर ब्रेस जैसा दिख रहा है, आर्च जैसा, हाफ आर्च जैसा, इसको हम कहते हैं फ्लाइंग बटरेसेस। इस पे क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेट्स सी इस टाइम आता है क्या। Gothic architectural style is very much celebrated architectural style in history and also in today's time. और इनके जो important features हैं, pointed arches, flying buttresses, ये भी हमने already cover किया हुआ है, मैं सिर्फ revise कर रही हूँ from exam point of view। तो flying buttress पे question आ सकता है। इसका पर्पस ये होता है कि ये इसको सपोर्ट कर रहा है मेन स्ट्रक्चर को। इसका जो लोड है वो यहाँ ऊपर रूफ से लोड ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, फिर वो फ्लाइंग बटरेस के थ्रू ट्रांसफर होके वो ग्राउंड पे चला जाता है। तो एक तरह से लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में ये हेल्प करता है। मेन स्ट्रक्चर ये हो गया, तो उसके साथ में फ्लाइंग बटरेसेस उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑल दीज आर फ्लाइंग बटरेसेस ओवर हियर। दिस इज गॉथिक स्टाइल। यहाँ पे भी आपको फ्लाइंग बटरेस दिख रहे हैं। देखो गॉथिक स्टाइल में बिल्डिंग्स में आपको फ्लाइंग बटरेसेस दिखाई देंगे काफी जगह। The given painting belongs to D says, meaning the style, a modern art movement developed in Netherlands in early 20th century. The art movement influenced the modern architecture as well as modern architecture as well. Choose the correct interior image
that belongs to the particular D cells style. अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन फिगर है वो यहाँ पे दिया हुआ है. आप यहाँ पे क्वेश्चन फिगर से आंसर फिगर को मैच करने की कोशिश करो कि कौन सा क्वेश्चन फिगर से आंसर फिगर कौन सा ज्यादा मैच हो रहा है. तो क्वेश्चन फिगर पहले समझो. क्वेश्चन फिगर में आपको क्लियरली कुछ कलर्ड पैचेस दिख रहे हैं, तो वो जो कलर्ड पैचेस हैं आप पहले आंसर फिगर से चेक करो कि कहाँ ज्यादा मैच हो रहा है. इसमें हो रहा है क्या, इसमें कहीं पे आपको रेड, ब्लू, येलो कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो एलिमिनेट करते चलो पहले कि ये तो हो ही नहीं सकता, है ना. फिर नेक्स्ट में चेक करो तो इसमें कहीं ब्लू हल्का सा दिख रहा है, कहीं हल्का सा रेड दिख रहा है, पर येलो इसमें कहीं नहीं दिख रहा है. और इसमें चेक करो, इसमें ब्लू और रेड दिख रहा है, येलो इसमें भी नहीं दिख रहा है. इसमें ब्लू, रेड, येलो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. तो एक तो कलर स्कीम से आपने देखा तो आपको ये दो दिख रहे हैं जिसमें कि ब्लू और रेड दिख रहा है. येलोइश थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रू येलो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे नहीं है. तो इस तरह से आप इसको ये दोनों क्लोजेस्ट ऑप्शंस हैं. अब इनमें से फिर भी आपको नैरो डाउन करना है एंड यू हैव टू रीच आउट टू एनी वन आंसर आउट ऑफ दीज टू. ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कलर रेड या ब्लू कहीं दिख ही नहीं रहा है ना. तो कलर स्कीम के बेसिस पे आपने एलिमिनेट किया और नैरो डाउन किया अपने ऑप्शन को. सेकेंड, आप देखो कि इसमें राइट एंगल्स पे ही सारे वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. तो वी कैन ऑल्सो रिलेट इट विथ क्यूबिज्म. क्यूबिज्म जैसे मैंने कई बार आपको बताया है कि क्यूबिज्म मतलब परफेक्ट क्यूब ही जरूरी नहीं है. क्यूबिज्म मूवमेंट जो था उसमें स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स इनका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा था. तो इस फ्रेम में उस बेसिस पे आप यदि इस फ्रेम में देखो तो आपको स्क्वायर्स, ऑल्दो दिस इज अ 3D पिक्चर, दिस इज जस्ट अ 2D आर्ट फॉर्म. तो ये 3D पिक्चर में भी आपको जितने भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, विंडो ओपनिंग, उसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, यहाँ पे भी आपको स्क्वायर रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है, दिस इज अ वाइट स्क्वायर काइंड ऑफ अ थिंग, ये भी एक स्क्वायर है, राइट. सो दिस इज हाउ दिस आंसर फिगर इज प्रिटी क्लोज टू द क्वेश्चन फिगर, right? So that is how on the basis of elimination method you can answer the questions very calmly and coolly. बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है. मतलब इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है बहुत ज्यादा कि डी सेल स्टाइल क्या है, बाप रे ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या है, ये क्या है, क्या क्या बात हो रही है. तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा पैनिक होने की आपको जरूरत नहीं है. ठीक है, एकदम आराम से क्वेश्चन पढ़ो और कॉमन सेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, प्रोवाइडेड यू आर अवेयर विथ कलर स्कीम. इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कलर स्कीम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल्स. कलर्स आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल्स. उसके बेसिस पे आप काफी कुछ कॉमन सेंस थोड़ा बहुत अप्लाई करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. आज के लिए इतना काफी है. पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? कौन से वाले क्वेश्चन का? यस मैम, ये वाले क्वेश्चन का आंसर. दिस वन, कर्सर जिस पे मैंने रखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन. यस मैम, ओके. हाँ, इसको आप टैली भी कर लेना. आपके पास पीडीएफ है पूरा, नाटा 2021 का पूरा पीडीएफ है, इसको आप टैली कर लेना. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. येलो नहीं है ना? इसमें येलो नहीं है, पर बाकी ऑप्शंस में आप कंपेयर करो. बाकी ऑप्शंस में आप कंपेयर करो. यहाँ पे कहीं ये ऐसे क्यूबिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है. यहाँ पे भी क्यूबिज्म का कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, जैसे आपको स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे हैं काफी कुछ. यहाँ पे जैसे ये है. आर यू एबल टू सी द कर्सर? होपफुली यू आर एबल टू सी द कर्सर. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ कर्सर. So to follow the movement of the cursor, I am trying to show you that इसमें भी स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें कलर स्कीम बिल्कुल मिसिंग है. तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता. आपको मैक्सिमम चीजों को टैली करना है. इसमें कलर स्कीम के बेसिस पे हमने चारों ऑप्शंस को पहले ऑब्जर्व कर लिया. ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता. तो कलर स्कीम के बेसिस पे ये दो हो सकते हैं क्योंकि इसमें रेड ब्लू है, इसमें भी रेड ब्लू है. येलो तो ना इसमें है ना इसमें है, किसी में भी नहीं है. तो कम से कम दो कलर्स तो इसमें मैच हो रहे हैं. पर सिर्फ कलर्स मैच होने के बावजूद भी फाइनली इन दो ऑप्शंस में से
यहाँ पे रेक्टेंगल या स्क्वायर वाला जो डोमिनेंस है वो यहाँ नहीं दिख रहा है. इसमें आप देखोगे तो मैक्सिमम एलिमेंट्स आर आइदर स्क्वायरिश और दे आर रेक्टेंगुलर इन शेप. Can you now understand as to how we should go ahead with elimination method to choose the correct answer? Yes, ma'am. Okay. So with this we'll end up this session. Tomorrow we'll take up few more interesting questions, and I'll advise you not to miss even a single session, because we are going to take a rapid fire round from today onwards to cover up the maximum things. Okay, so that's all for today. Have a great day. Yes. Thank you, ma'am. Yeah, most welcome.